बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमें एसआईपी करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टिंग फील्ड में एक चीज हमने सीखी है कि कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। अभी 2 लाख रुपए महीने लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा सो दैट आपको थ्रू आउट लाइफ, तो इन वन लाइनर, you should not time the market. Today we have Mr. Anand with us, who always remain behind the curtain. He is our creative director, but had lot of questions about investing. Then I requested him, why don't you ask questions live on a podcast? And here we go. So today we have Anand's questions which he has in mind. His age is around 45. So let's see what kind of questions he has in mind. I will try my level best to resolve all the queries. Thank you, Gaurav ji, to inviting me for this podcast. As you said कि yes, behind the scene जब रहता था तो बहुत सारे questions दिमाग में थे, and so I belong with creativity and creative stuff. Unfortunately, अपने education system में वो finance oriented knowledge नहीं मिलता था. We belong with that generation. तो अभी investments कर रहा हूँ, चल रहा है, okay. तो एक बेसिक मेरे दिमाग में क्वेश्चन, जब आपका इंट्रोडक्शन मैंने सुना, यू आर बिलोंग विद कोटक महिंद्रा एज अ फंड मैनेजर और बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो एज अ लेमैन मुझे एक बेसिक क्वेश्चन था कि भाई फंड मैनेजर होता है, दैट इज गुड थिंग, बहुत सारे कंपनीज के बारे में मैंने सुना है, लेकिन उनका एग्जैक्टली रोल क्या होता है और इन्वेस्टर्स को वो कैसे बेनिफिट दिला के देते हैं? सो आई एम लिटिल क्यूरियस अबाउट इट. राइट. देखिए, तो यस, यू आर राइट, आई वाज पार्ट ऑफ कोटक महिंद्रा, बट माय पार्ट इज मोर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन. बट यस, ऑल फंड मैनेजर्स आर माय फ्रेंड, तो आई कैन एटलीस्ट एड्रेस योर क्वेरी. तो सी, फंड मैनेजर्स आर लाइक प्रोफेशनल्स. जैसे आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और योर कंप्लीट जॉब इज इनटू लाइक थिंकिंग क्रिएटिविटी, हाउ टू come up with the ideas which are innovative in nature. So similarly in fund management, they do the studies about investing, reading balance sheet and multiple kind of things. At the same time, all fund managers has their own team, and they divide the entire market into their team. Like if we have a company, or you can consider in our market approximately 5,500 companies are listed. All fund managers, all analysts are not able to do the research on all the companies, so they select their universe. So most of the fund managers has a universe of top 650 stocks. You can say 500 to 650, 700 stocks, and they divide the sectors and stocks into the analyst team. Let me give you example of Kotak Mutual Fund. Kotak Mutual Fund has a analyst team of around 17, 18, where they have divided all the sectors among these analysts along with the number of shares. Like large cap is only belong to the top 100 companies, whereas small cap, mid cap has more universe. In fact, small cap has more universe. So small cap start from the 250th company to 650, 750 कंपनी तक आप बोल सकते हैं स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप. तो वी नीड मोर एनालिस्ट टू कवर दोज स्मॉल कैप कंपनीज, बिकॉज मिड कैप इज ऑल्सो 150. तो टॉप 100 इज लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 इज मिड कैप, एंड रेस्ट आर द स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप. तो यू नीड मोर एनालिस्ट टू डू द रिसर्च ऑफ माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप रादर देन लार्ज कैप. तो दैट्स हाउ दे डिवाइड द कंपनीज इनटू एनालिस्ट टीम. Analyst team do the research on the sectors and company, then they make the model portfolio and provide inputs to the fund manager. And due to their experience, not only academically, but because of their practical experience which they have done in last 10 year, 20 year, 30 year, depend on the experience of the fund manager, they make the portfolio for investor. Okay. So in simple term, you are busy in your job, but you need not to worry about your investment because somebody else is doing the entire duty, and he is not the one person, he is the entire system. So your money will remain into same, I will not use the safe, but yes, because of the professional experience which they have, it will be little safe and they will manage your money. So by paying a small fees,
around 2%, you are at least mentally free कि आपको कब क्या करना है, कब क्या बेचना है, कब क्या खरीदना है, उससे सब दूर हो जाते हैं और आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं. In a normal scenario, you may end up getting 6, 7, 8%, whereas in mutual fund you may end up getting 12 to 15% over a time period. Right. Yeah, and I actually experienced this. I burnt my finger कि directly daily trade and you know that COVID में वो pattern आया. So I realized कि yes, fund managers are so important. ये अपने बस की बात नहीं, जिसका काम उसी को साझे. Okay, great. My another question to you is now in our society. एक मोटा मोटी अगर डिवाइड करें कि एक सैलरी पर्सन की जिसको पर मंथ एक पैसा आता है एंड अनदर वन इज बिजनेस ओनर्स. मैं ये थोड़ा सा स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स की बात कर रहा हूँ कि जहां पे मे बी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स और उनका बिजनेस प्रॉफिट इनकम वो अप एंड डाउन काफी होता रहता. नाउ व्हेन इट कम्स टू SIP एट दैट टाइम इट्स अ फिक्स इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर, राइट, एवरी मंथ, कि जो सैलरी पर्सन को मैनेजेबल हो सकता है. बट फॉर बिजनेस ओनर्स की जिनका अप एंड डाउन चलता रहता है, कुछ महीने ऐसा हो सकता है कि समथिंग हैपन. तो माय क्वेश्चन इज कि पर मंथ SIP का जाना या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द आइडियल थिंग कंसिडरिंग बोथ? तो आनंद जी, आई थिंक ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है सभी के लिए. तो मैं उसको थोड़ा सा और पहले जाना चाहूंगा आपके क्वेश्चन से, बिकॉज आपने तो आई थिंक आप बहुत सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट, तो आपको एक स्टेप आगे पता चल गया है. लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमें SIP करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो लेट मी एड्रेस योर बोथ द क्वेरीज बाय वन एग्जांपल. तो जब मैं आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज और बिफोर कॉलेज, तो मेरे घर से जो कॉलेज था उसका डिस्टेंस हम 1.5 किलोमीटर था. एंड हम लोग 3 दोस्त थे, मैं, जोगिंदर एंड दीपक. तो दीपक का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो वो कॉलेज में बाइक से आता था, वेयरएज जोगिंदर का उससे थोड़ा कम था, लेकिन ही वॉज एबल टू अफोर्ड दी साइकिल, तो वो साइकिल से आता था और मैं पैदल जाता था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड साइकिल. तो मेरे को कॉलेज जाने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते थे, जबकि जोगिंदर को कॉलेज जाने में कुछ 10 से 15 मिनट लगते थे और दीपक को हार्डली 5 मिनट लगते थे. डिस्टेंस मोर और लेस तीनों का सेम था, बट जाना तीनों को कॉलेज था. बट तीनों के पास तरीके अलग थे पहुंचने के. तो जिसके पास बाइक थी, दीपक के पास, उसको घर से सिर्फ 5 मिनट पहले निकलना पड़ता था. जिसके पास साइकिल थी उसको 15 मिनट पहले निकलना पड़ता था और मुझे घर से लगभग 25 मिनट पहले निकलना पड़ता था. लेकिन पहुंचते हम कॉलेज थे. तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड इज कॉलेज, SIP एंड लमसम इज द वेज टू इन्वेस्ट. तो अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, SIP में इन्वेस्ट करना है तो आप धीरे से पहुंच सकते हैं. क्यों? ऐसा नहीं है कि SIP अच्छा है कि लमसम अच्छा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लमसम में आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, SIP में आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. तो दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा कि कौन सा अच्छा है. दोनों ही अच्छे हैं. अगर मैं उस समय पे कंपेयर करता कि दीपक इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी बैड, तो आई थिंक पढ़ ही नहीं पाता. बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. तो प्रोबेबली मैं थोड़ा लेट पहुंच सकता हूं क्योंकि हो सकता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वैसा सपोर्ट नहीं करे, बट इट डज नॉट मीन कि मैं नहीं पहुंच सकता. तो आई थिंक वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग द SIP वर्सेस लमसम. दीज आर द वेज टू इन्वेस्ट और रीच कॉलेज और रीच टू ए डेस्टिनेशन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, नाउ आई थिंक योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि जब कोई सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो वो धीरे धीरे कमा रहा है, तो प्रोबेबली वो वॉक करके या साइकिल पे जा रहा है. वेयरएज कोई बिजनेसमैन है, हो सकता है उसको थ्रू आउट ईयर में कुछ कमाई ना हो, लेकिन एक बड़ा चंक आ जाए. ये कमाई तो हुई थी बट वो डेफर्ड अर्निंग थी और वो अचानक से साल में आ जाए. तो दोनों ही अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं.
क्योंकि सैलरीड पर्सन को एक विजिबिलिटी है कि उसके अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज आएंगे, देन ही कैन प्लान इन ए वे कि मैं एक्स अमाउंट की एसआईपी हर महीने कर सकता हूं। तो उसके लिए एसआईपी अच्छा है। तो एसआईपी इज जनरली वट एवर योर फ्यूचर अर्निंग इज, तो उसके लिए आपको एसआईपी करनी है। लमसम अमाउंट जो आपने अभी तक कमाया हुआ है उसके लिए आपको लमसम करना है। तो जैसे इन बिजनेसमैन केस में हम क्या सजेस्ट करते हैं उनको कि जब भी आपको कोई बड़ा चंक आता है तब आप हमें इन्वेस्ट या हमें दे दिए, इन्वेस्ट करते रहिए, सो दैट जब भी आपको अमाउंट आया तब इन्वेस्ट हो गया। तो हो सकता है उसने वही अमाउंट 12 महीने में सैलरीड पर्सन ने किया हो और उससे ज्यादा अमाउंट उन्होंने 1 चंक में कर दिया हो। बट क्योंकि वो हर साल कमा रहे हैं तो दे कैन डू दी एसआईपी काइंड ऑफ थिंग एवरी ईयर, बट यू विल नॉट बी इन बाउंडेशन। जब भी आपके पास चंक आया, यू जस्ट कॉल अस एंड यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। ओके, सो इसको ही आगे लेके जाना चाहूंगा कि सो देन ओके, फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो मेरे पास अभी 1 लाख पड़ा है एंड अभी मार्केट अप है या डाउन है, सो डू आई नीड टू थिंक अबाउट इट, या फिर क्या एग्जैक्टली मीन्स अभी मैं अगर ये सोचने लगा कि यार अभी मार्केट डाउन है तो अगले महीने 1 लाख इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो ये सोच करेक्ट है क्या, या फिर डाल के छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट? देखिए आनंद जी, अपनी इन्वेस्टिंग फील्ड में एक चीज हमने सीखी है कि कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए आज आपने टाइम किया मार्केट को या टाइम करने की कोशिश करी और आज मार्केट समझ लीजिए 80,000 लेवल पे है और आपने टाइम करने की कोशिश करी और आपको बाय चांस 76,000 का लेवल मिल गया, तो जब आप 1 साल के बाद देखेंगे अपना रिटर्न, क्योंकि आपको डिस्काउंट में मिला था, तो प्रोबेबली आपका रिटर्न जो होगा वो 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, 30% हो सकता है, ड्यू टू दी टाइमिंग ऑफ द मार्केट। बट अगर उसी इन्वेस्टमेंट को किसी ने 76,000 पे किया है, किसी ने 80,000 पे किया है, हम 10 साल के बाद देखेंगे, तो प्रोबेबली जो डिफरेंशियल फर्स्ट ईयर में था आपका और मेरा, कि मैंने ऊपर वाले लेवल पे किया, आपने डाउन लेवल पे किया, 1 साल का डिफरेंशियल बड़ा था, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी गुड कि यार मैंने टाइमिंग किया, बहुत अच्छा हुआ, मेरा रिटर्न देखिए उसका तो 10% है, मेरा 20% है। बट जब आप 10 साल 15 साल 20 साल के बाद देखेंगे तो जो रिटर्न डिफरेंशियल होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिकॉज जो फर्स्ट ईयर का आपका गैप था 6% का या 7% का जो गैप था वो 7 साल में 1% हो जाएगा डिवाइड होके, 14 इयर्स में आधे % का गैप रह जाएगा, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट स्टिल यू विल अर्न मोर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट द गैप विल गेट रिड्यूस्ड। नाउ थिंक अबाउट द अदर वे अराउंड, आई हैव नॉट चेक द मार्केट, आई जस्ट इन्वेस्टेड एट वट एवर द लेवल, बट यू ट्राई टू टाइम द मार्केट, बट मार्केट नीचे ही नहीं आया, एंड सिंस आपने ट्राई किया मार्केट को टाइम करने का, तो 80,000 के भाव पे ट्राई किया, वो 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया। जब आप 80 पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो बहुत कम चांसेस हो गए कि आप 82, 83, 84 पे इन्वेस्ट करेंगे। एंड बाय दिस वे, अगर आपने ये सोचा कि अब तो ये ट्रेन मिस हो गई तो छोड़ो मैं दूसरी ट्रेन पकड़ता हूं, एंड आपने फिक्स डिपॉजिट में डाला, तो 10 साल के बाद जो रिटर्न डिफरेंशियल होगा वो प्रोबेबली 7% और 14% का होगा। तो द गैप or the risk which you have taken by trying to do the time would be huge if your investment tenure is long. But if you are investing for 6 months, 1 year, तो वो किसी साइड भी हो सकता है, वो रिस्क साइड भी हो सकता है, वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। तो in one liner, you should not time the market. That can be more dangerous. That the return differential would be more. Yeah. Okay. आपने अभी एफडी का जिक्र किया, सो वन क्वेश्चन अकर्ड इन माय माइंड कि छोटे टर्म के लिए, छोटे टर्म्स इन मे बी इट्स अ वेरी माइक्रो थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि लेट्स से 1 महीने के लिए मुझे 1 महीने के बाद लगने वाला है पैसा, सो इज इट गुड वे टू पुट इन एफडी, और ऐसे कुछ फंड्स होते हैं क्या कि महीने भर के लिए आप डाल दो एंड कंपेयर टू एफडी आई विल गेट लिटिल एक्स्ट्रा रिटर्न, नॉट ग्रेट बट राइट। तो आनंद जी, एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि हर चीज रिटर्न नहीं होती।
ओके बहुत बार हम स्टार्ट और एंड सिर्फ रिटर्न से करते हैं। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो प्रोबेबली आंसर ये होगा कि सर हो सकता है रिटर्न में कोई डिफरेंशियल ना हो। द फर्स्ट थिंग इज यस, इन म्यूचुअल फंड यू हैव ऑप्शन टू इन्वेस्ट फॉर 1 day ऑल्सो, फॉर 1 month ऑल्सो। तो उनको हम डेट म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। उसमें एक कैटेगरी होती है लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड, डिपेंड ऑन योर टाइम होराइजन, 7 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यहां पर इन्वेस्ट करने से मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि यहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब फर्ज करके चलिए, एज्यूम करिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया कहीं से आया एंड आज आपको लग रहा है कि वो शायद मेरे पास 30 days का ही है। तो नाउ यू हैव 2 ऑप्शन, सिंस यू नो कि अभी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइदर यू विल गो फॉर ए फिक्स्ड डिपॉजिट और आइदर यू विल गो फॉर ए म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड। तो इन फिक्स्ड डिपॉजिट कंसीडर करते हैं 30 दिन का जो फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट है वो समवेयर अराउंड 5% है। Whereas in mutual fund also you will get more or less 5.5%. But at the same time, अगर वो पैसा आपको 30 दिन के बाद जरूरत नहीं पड़े रही सडनली एंड यू वांट टू कंटिन्यू फॉर 7 more days, 15 more days, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफडी को फिर दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा फॉर 7 days और 15 days। Probably your rate of return will get reduced to 4% or 3.5% or 3% also. True. But in mutual fund, your return will remain almost same 5 to 6%. तो you need not to time the market. तो आपको अगर 1 दिन बाद भी लग रहा है तो आपको उसको ब्रेक कराने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैंने देखा है अपने पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर आए हैं जिन्होंने बोला है कि ये पैसा मेरे पास 1 ही महीने का है और वो 6 महीने 7 महीने तक भी इन्वेस्टेड रहता है। तो दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द रिटर्न जस्ट बिकॉज कि उनको टाइम कम या ज्यादा लग रहा है। तो इन म्यूचुअल फंड, इन लिक्विड फंड्स यू कैन इन्वेस्ट योर मनी फॉर ए डे ऑल्सो, for 1 month, for 2 months or whatever the time period, and you will get your money back within a single day. तो हम इसको reinvestment risk बोलते हैं, and reinvestment risk is the biggest risk and which is underrated risk. reinvestment risk होता है कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा लगाते हैं लेकिन वो पैसा उस समय पे नहीं लग रहा है, फिर दोबारा से आप उस पैसे को दूसरे रेट पे लगाते हैं। तो अभी उस समय का रेट अगर कम होगा तो योर एंटायर रिटर्न्स विल गेट रिड्यूस्ड, but in mutual fund you will have less reinvestment risk. Okay, so let's say मान के चलो 30 दिन का मैंने ये किया। Now there is big important thing, taxes जो इंडिया में है। तो for that means अगर मैंने निकाला 30 दिन के बाद एंड उसका बहुत बार there is something called exit load, ये मैंने सुनी है। तो हाथ में जब पैसा आता है, मीन्स दिखने में दिखता है कि 5%, 6%, 4%, लेकिन जब एग्जिट करता हूं तो एट दैट टाइम टैक्स के नीचे जो पैसा चला जाता है, तो वो एग्जैक्टली चक्कर किस तरीके से हाउ इट वर्क्स, कैन यू प्लीज? तो देखिए, डेट म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे शॉर्टर ड्यूरेशन में तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बिकॉज वी विल सजेस्ट यू दी फंड्स जहां पर एग्जिट लोड नहीं है, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव ही 30 days या 60 days का था। तो देयर आर फंड्स जिनका ऑब्जेक्टिव ही इन्वेस्टमेंट लेना 30 days 60 days का है, तो वहां पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एज फार एज टैक्स पार्ट इज कंसर्न, यू विल गेट द एंटायर अमाउंट बट यू हैव टू पे द टैक्स एज पर योर इनकम स्लैब विच इज सेम लाइक द फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो जो आपको यहाँ पे टैक्स पड़ेगा वही वहां पर टैक्स पड़ेगा। सिर्फ आपको कैपिटल गेन टैक्स में 1.25 लाख रुपीज का डिस्काउंट मिलता है इन इक्विटी, एंड ये डेट पार्ट का था। और जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं जो 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बिकॉज इन इक्विटी द टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म टैक्सेशन मींस मोर देन 1 year का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उस पर 12.5% है, तो दैट विल नॉट काउंट एज योर बिजनेस इनकम वेयर योर प्रोबेबली योर टैक्स स्लैब इज 30-35%। यहां पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ टैक्स ऑल्सो एंड रिटर्न ऑल्सो, बट इन डेट म्यूचुअल फंड यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। सो माय अनदर क्वेश्चन इज कि अभी जो कुछ चल रहा है कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर ट्रम्प ने टेरिफ बढ़ा दिया, समथिंग लाइक दैट, तो फॉर नेक्स्ट 2 years कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज है कि जो अच्छे काम कर सकते हैं, और समथिंग लाइक दैट कि एज अ लेमैन इन्वेस्टर
अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ठीक है भाई इन्वेस्ट करना है, तो किस तरीके से मैं मेरे 2 साल के इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकता हूँ व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स? तो आनंद जी, जब आप 2 साल का प्लान बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग 2 साल के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे पिछले 30 सालों में या 20 सालों में या 10 सालों में, मतलब कोई भी ऐसा डिकेड नहीं गया है जहां पर कुछ ना कुछ बड़ा वॉलेटिलिटी वाला पीरियड नहीं आया है। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इंडिया से कनेक्टेड हो या वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। तो फॉर लेसर देन 2 years और 3 years इन्वेस्टमेंट जनरली वी रिकमेंड डेट म्यूचुअल फंड, जहां पर आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती एंड प्रोबेबली यू विल एंड अप गेटिंग 7 to 8% काइंड ऑफ रिटर्न्स। बट अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, लंबा यानी कि लॉन्ग टर्म है, बट अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, से मोर देन 3 years है, 4 years, 5 years, 10 years, 15 years, एंड दैट इज कनेक्टेड टू योर गोल, तो डेफिनेटली वी कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट इन ए डाइवर्सिफाइड फंड। मोर देन कि कौन सा एरिया अच्छा चलेगा, तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट एंड मी ऑल्सो दैट वी आर द प्राउड इंडियंस and we are fortunate enough that at this point of juncture we are in India. Why I say so? देखिए, किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है तो वो पर कैपिटा इनकम से ग्रोथ होती है। अगर आप यूएस देखेंगे तो यूएस में 1960 से लेकर 1990 तक सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ था। वॉरेन बफे जी बन पाए, उसमें सबसे बड़ा रोल टाइमिंग का भी था, अपार्ट फ्रॉम ऑल हिज विजडम, पेशेंस, नॉलेज एंड एवरीथिंग, बट द टाइमिंग of that country and the timing of the investment was superb. When I say timing is not mean कि आपने मार्केट देखा और इन्वेस्ट किया। टाइमिंग is like 2-3 decades जब कंट्री प्रॉस्पर हो रही थी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक यूएस इकोनॉमी का जो पर कैपिटा इनकम है दैट वेंट 7-8 times, मोर देन 7-8 times। उसी टाइम पीरियड पे जापान में भी पर कैपिटा इनकम बढ़ा। अगर आप चाइना का देखेंगे तो चाइना का जो पर कैपिटा इनकम था वो 1990 से 2010 तक बढ़ा। व्हेन आई से पर कैपिटा इनकम लाइक आपकी जनरल पब्लिक कितना एवरेज कमा रही है। तो आप देखिए, जब कमाई ज्यादा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, और जब खर्चा ज्यादा होगा तो इकोनॉमी ग्रो होगी। तो यूएस का सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ 1960 से 1990, जापान का 1960 से 1990, चाइना का हुआ 1990 से 2010, एंड नाउ फॉर्चुनेट इनफ अब इंडिया का ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इट्स बीन 10 years। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? किसी भी कंट्री में जब पर कैपिटा इनकम $1500 के नीचे रहता है तब सबसे ज्यादा जरूरत रहती है रोटी, कपड़ा, मकान। अभी आपको याद नहीं होगा कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में कोई महंगाई मार गई को लेकर कुछ मूवी आई हो, या रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर मूवी आई हो, जबकि पहले आई थी। क्योंकि उस समय पर हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, तो सब लोगों को महंगाई मार रही थी और हम रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। बट अभी लोगों को ये देखना है कि रेफ्रिजरेटर कौन सा लेना है, एसी कौन सा लेना है, गर्मी बहुत हो गई है, हम लोगों को एसी खरीदना है। तो हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $2500 से बढ़ चुकी है। तो आज ये $2500 है जब हम ये सब बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जब ये $2500 का $5000 होगा, $5000 का 7.5 होगा, फिर $10,000 होगा, तो हमारा कितना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, यानी कि जो हम खर्चा कर सकते हैं। देखिए, आप रोटी, कपड़ा और मकान में एक लिमिट तक खर्चा कर सकते हैं जरूरत पे। बियॉन्ड दिस आप क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे अपने आप को। अब वो चाहे अपग्रेड हो आप ब्रांडेड कपड़े लें, चाहे वो अपग्रेड हो आप मोबाइल महंगा लें, चाहे वो अपग्रेड हो आप महंगी गाड़ी लें। तो आप देखिए, जब ये हमारी इकोनॉमी $2500 या $2600 से $10,000 जाएगी अगले 10 से 20 सालों में, तो इकोनॉमी कितना ग्रो होगी। तो दिस इज द टाइम ऑफ इंडिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में भी स्टे इन्वेस्टेड रहे तो प्रोबेबली यू विल एंड अप गेटिंग ए 12 to 14-15% kind of CAGR returns, which is good enough. Perfect. So अभी लाइफस्टाइल की बात चल रही है, तो I want to take this ahead for retirement। जब जनरली इंडिया में 40-45 के बाद लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, एंड एट दैट टाइम दे विल गेट हार्डली 15-20 years। ओके, सो एट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ कैसे देखा जाए कि
हाउ म्यूचुअल फंड हेल्प्स फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग? तो आई थिंक सिंपल चीजें करना आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग सिंपल? हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, रिटायरमेंट करना है, तो ये करना है, वो करना है, या नहीं सोचते। या तो हम सोचते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, या फिर हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है। जितना पैसा आए वो वी कीप ऑन स्पेंडिंग, हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और होटल में स्पेंडिंग करते हैं एंड ऑल। तो दोनों ही चीजें करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मिडल का पाथ चूज करना चाहिए। तो लेट्स डिजाइन एंड लेट्स लुक एट इट इन ए सिंपल वे। सिंपल है, आज आपका खर्चा कितना है? मैं आपसे पूछता हूं, आज आपका एक लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको कितना आज एक्सपेंस लगेगा? 30 to 50,000 के आसपास। 30 to 50,000 के आसपास। तो 30 to 50,000 के आसपास कंसीडर करते हैं 50,000 रुपए का आपको एक्सपेंस चाहिए। यही 50,000 रुपए का एक्सपेंस बढ़कर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, 10 साल के बाद 1 लाख रुपए का हो जाएगा। और यही 1 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है वो बढ़कर अगले 20 साल में 2 लाख रुपए का हो जाएगा। तो एक चीज सिंपल हो गई कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए महीने का 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। यानी कि 20 साल के बाद आपको हर महीने 2 लाख रुपए मिलना चाहिए, और उसको हर 2-3 साल के बाद 10% से बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो प्रोबेबली पहले साल आपको 2 लाख मिले, फिर दूसरे साल आपको 2,10,000 मिले, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाए। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमें 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। अभी 2 लाख रुपए महीने लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा, सो दैट आपको थ्रू आउट लाइफ, अब आप 80 साल जिए या 100 साल जिए, बट वो 2 लाख रुपए कंटिन्यू रहने चाहिए विद द इंक्रीमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो 2 लाख रुपए के लिए लगभग आपको, अगर 4 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस बन जाता है, तो आपको इजीली 2 लाख रुपए महीना मिल जाएगा। अभी कैसे होता है कि 2 लाख रुपए महीना यानी कि 12 महीने का 24 लाख रुपए। 24 लाख अगर 4 करोड़ हुआ और उस पर 6% से विड्रॉल किया तो लगभग 24 लाख रुपए बनता है। म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आता है वो लगभग 12% के आसपास आता है, 12 से 14% के आसपास आता है। जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो वो कंजर्वेटिव फंड में आ जाएगा, तो आपका 10 से 11% आएगा। तो आपका विड्रॉल हो रहा होगा 6%, बट आपका पैसा बढ़ रहा होगा 10 से 12% पे। तो आपका जो कॉर्पस है वो कभी भी कम नहीं होगा, एंड कॉर्पस विल ऑल्सो कीप ग्रोइंग एंड योर इनकम विल ऑल्सो कीप ग्रोइंग। यहां तक क्लियर है। नाउ अभी 4 करोड़ के कॉर्पस बनाने के लिए अगर आज आप रफली 50,000 रुपीज का SIP करते हैं 20 साल के लिए, तो आपका 4 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। तो इट इज सो सिंपल। नाउ अगर आपको लगता है कि आज आपके पास 50,000 रुपए नहीं है, तो भी आप इस गोल को पूरा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है। तो अगर आज आप 20,000 से शुरू करते हैं, तो हर साल आप 10% से अपना SIP बढ़ा सकते हैं, जिसको हम स्टेप अप SIP बोलते हैं। तो भी आपका गोल काफी हद तक आसपास पहुंच जाएगा। तो दिस इज सो सिंपल, बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस ड्रॉइंग, स्टिल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर, हम 4 साल के बाद हमें गाड़ी खरीदनी होगी, मोबाइल खरीदना होगा, एंड उसके लिए हम प्लान नहीं करेंगे और सब कुछ रिटायरमेंट वाले फंड से ही लेंगे। तो दैट इज आवर मेन जॉब कि वी ऑलवेज ट्राई टू कीप पुशिंग आवर इन्वेस्टर्स कि सर ये वाला इस गोल के लिए था, ये वाला इस गोल के लिए था। तो यू शुड हैव योर SIPs एंड योर इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड टू योर गोल्स सो दैट इट विल रिमेन सिंपल। Great. Okay. I got a lot of clarity on this question. Now, my last question is when it comes to particularly individual business owners कहता हूं मैं उनको, या फिर जो फ्रीलांसर्स है कि जो कहीं पे भी जॉब नहीं करते. Okay, so उनके लिए अगेन ये अप एंड डाउन्स चलता रहेगा. एंड आज की तारीख में इफ आई कंसिडर कि यंगस्टर्स भी इसको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि बहुत सारा लोगों का स्टार्टअप एंड खुद का कुछ करने का ये है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स की जो बिजनेस कर रहे हैं? आई एम ए गुड लर्नर, एंड मैं संजय भाई जो मेरे पार्टनर हैं उनसे बहुत अच्छी चीज सीखा. यू शुड टारगेट दैट योर पैसिव इनकम शुड बी मोर देन योर एक्टिव इनकम. What does it mean? Let me explain you. अब चाहे फ्रीलांसर हैं या फिर हम बिजनेस ओनर हैं या हम जॉब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? हम लोग वी आर ट्रेडिंग आवर टाइम.
मीन्स आप 8 घंटा देंगे और 8 घंटे के बदले आपको XYZ अमाउंट मिलेगा। आप कुछ समय देंगे तो उसके बदले आपको कुछ पैसा मिलेगा। अब नाउ समय आपके पास लिमिटेड है, 24 आवर्स है। अगर आप 24 आवर्स भी काम करते हैं तो 24 आवर्स इज लिमिटेड, एंड इफ योर पर आवर इनकम इज लिमिटेड देन योर टोटल इनकम इज लिमिटेड। तो अब इसको कैसे बढ़ाएं या क्या तरीका करें? तो पहली चीज तो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। जो आज आपको 1 घंटे का 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या वट एवर दी अमाउंट मिल रहा है, वो अमाउंट आपको कैसे बढ़कर मिल सकता है? एक सिंपल तरीका है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 6-7% से बढ़ेगा, उसमें तो आपका स्किल कुछ नहीं हुआ, वो तो इकोनॉमी है, लेकिन जितना आपकी इनकम बढ़ रहा है उतना ही खर्चा बढ़ रहा है, तो एक्चुअली यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर मनी। तो आपको अपने स्किल्स को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। योर टाइम इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, बट योर पर आवर वैल्यू में गो अप। तो पॉइंट नंबर 1, you should upgrade your skills. The second thing, at the same time, now what if your health is not supporting you? What if any external impact will affect you? So you should be diversified. So whatever money you are getting by trading your time, you should ask your money to work for you. जनरली हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं और बहुत पढ़ाते हैं ताकि वो बड़ा होके कुछ बने और थोड़ा सपोर्ट करे। आजकल तो थोड़ा सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन कम हो गया है, बट ऐसा होता है। बट स्टिल वी आर नॉट ट्रीटिंग आवर मनी लाइक ए अर्निंग मशीन और लाइक ए बेबी। मतलब ही कैन ऑल्सो ग्रो एंड मेक मोर मनी फॉर यू। तो यू शुड डाइवर्सिफाइड। इट मीन्स आप उस पैसे को दूसरे बिजनेस ओनर को दीजिए कि अब आप ये पैसा है इसको कमा के दीजिए। तो क्या हुआ, आपके पास 8 घंटा था, बट आपने अपने पैसे को दूसरे को दिया तो उसके पास भी 8 घंटा है, तो अब आपका कितना हो गया, 8 + 8। तो नाउ यू आर अर्निंग फॉर 16 आवर्स। ऐसे ही अगर आपने पैसे को 10 अलग अलग बिजनेस ओनर को दिया तो आपने 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 80 आवर्स खरीद लिए। तो 80 आवर्स + 8 आवर्स 88 आवर्स। नाउ आप बोलोगे कि वो 8 ही घंटे हमारे लिए क्यों काम करेंगे? यू आर राइट, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ। बट उस 8 घंटे का अगर वो 1 घंटा भी आपको दे रहे हैं, यानी कि आपके लिए काम कर रहे हैं, वट एवर द परसेंटेज, यू विल कीप ग्रोइंग। तो स्लोली अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, एंड इसका मतलब है आपने पैसे को काम पे लगाया और वो अलग अलग बिजनेस ओनर्स के पास जाएगा, उनका कुछ टाइम लिमिट आपके पास भी आ रहा है, तो वन डे यू विल सी पीपल विल वर्क फॉर यू, एंड जो आपका 8 घंटे या 10 घंटे का लिमिट था वो अचानक 1000 घंटे 2000 घंटे का हो गया है, एंड देन योर मनी विल मेक मोर मनी फॉर यू देन योर ट्रेडिंग टाइम। दिस इज द ट्रूथ फॉर एवरी वेल्दी क्लाइंट। जो भी आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास भी 24 घंटा है, बट उनका मनी उनके लिए ज्यादा काम कर रहा है बाय दिस वे। तो जो भी फ्रीलांसर है, बिजनेस ओनर्स हैं, they should not only focus only on their business, should invest wisely to diversify। इसमें एक चीज ये भी होती है कि कोई बिजनेस इस समय पर बहुत अच्छा कर रहा होता है, कोई बिजनेस कभी दूसरे समय पर बहुत अच्छा कर रहा होता है, कोई बिजनेस किसी और दूसरे समय पर अच्छा कर रहा होता है। तो बाय डूइंग डाइवर्सिफिकेशन, हो सकता है आपके बिजनेस में कभी इंपैक्ट आया तो आपको उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वन डे योर पैसिव इनकम विल बी मोर देन योर एक्टिव इनकम, एंड देन यू चूज टू वर्क फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। अमेजिंग इनपुट्स थे और आई गॉट लॉट ऑफ क्लियरिटी, सो बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू आनंद जी। आई थिंक जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और शायद अगर आप नहीं पूछते तो ये हम डिजाइन भी नहीं कर पाते। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, काइंडली डू पोस्ट इन आवर कमेंट्स, एंड डेफिनेटली वी विल टेक ऑल दोज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। एंड ऑडियंस को मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि देयर आर लॉट ऑफ extra knowledge which is available on Indus ka YouTube channel and Instagram handle. So do subscribe and increase your wealth. Thank you.